یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ نہایت سخت مزاج اور خاموش طبع تھا۔ کسی کی معمولی سی بھی غلطی برداشت نہ کرتا، یہاں تک کہ اپنی اکلوتی بیٹی ماہپارا سے بھی سخت لہجے میں بات کرتا اور اس کی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی معاف نہ کرتا۔ بادشاہ کا اپنی بیٹی سے ایسا سرد رویہ کسی کو بھی پسند نہ تھا، لیکن کوئی کچھ نہ کہتا۔ ماہپارا ذہین اور بہادر لڑکی تھی، باپ کے سخت رویے سے نالاں تھی، لیکن اس نے رونے دھونے کی بجائے اپنی توانائی مختلف ہنر اور کام سیکھنے میں لگائی۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بوڑھا ہو گیا اور ماہپارا جوان ہو گئی۔ ماہپارا اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت تھی، جو دیکھتا رہ جاتا۔ بادشاہ بھی دل میں پارا کی خوبیوں کا متعارف تھا۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار چلانا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مختلف کتابیں پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا وہ اب اپنی بیٹی کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہو جائے، اس لیے بادشاہ نے وزیر سے اس معاملے میں رائے لی۔ وزیر نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، شہزادی ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے، آپ ایک دفعہ اس کی رائے بھی پوچھ لیں۔ بادشاہ کو وزیر کی بات بالکل پسند نہ آئی، لیکن خاموش رہا۔ اگلے دن بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اسے شادی کے حوالے سے بات کی۔ شادی کی بات سنتے ہی شہزادی نے فوراً کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو اس کی ایک شرط ہے۔ بادشاہ کو شہزادی سے اس بات کی توقع نہ تھی، اسے لگتا تھا ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی شہزادی اس کی بات سن کر خاموش رہے گی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے شہزادی کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا اور خود گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ایک دن کھانے کی میز پر بادشاہ نے شہزادی کو بلایا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا، کیونکہ بادشاہ ہمیشہ اپنے کمرے میں کھانا کھاتا اور شہزادی اپنی آیا، جسے وہ ماسو کہتی، اس کے ساتھ کھاتی۔ بادشاہ صرف تب میز پر آ کر کھاتا جب اس نے کوئی بات کرنا ہوتی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، میں تمہاری کوئی شرط سننا نہیں چاہتا، میں تمہارے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی تم بتاؤ، شاید مجھے تمہاری بات قابل غور لگے۔ شہزادی نے کہا، میں ایسے شخص سے شادی کروں گی جو میرے سوال کا درست جواب ڈھونڈ کر لائے۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا سوال ہے؟ شہزادی بولی، گل نے صنوبر کے ساتھ کیا اور صنوبر نے گل کے ساتھ کیا۔ بادشاہ یہ سوال سن کر ایک دم بھڑک اٹھا، کہنے لگا، یہ کس قسم کی شرط ہے؟ میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ شہزادی نے کہا، لیکن میری یہی شرط ہے، جو مجھے اس سوال کا جواب لا کر دے گا، میں اسی سے شادی کروں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی وہاں سے چلی گئی۔ شہزادی نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا، جو شہزادی کے اس سوال کا درست جواب بتائے گا کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا اور صنوبر نے گل کے ساتھ کیا، شہزادی اس کے ساتھ شادی کرے گی، اور جو غلط جواب بتائے گا اسے 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ پہلے کچھ نوجوان اپنی قسمت آزمانے آئے، لیکن شہزادی کو کسی کا جواب پسند نہ آیا، الٹا کوڑے کھا کر محل سے بھاگے۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پڑوسی ملکوں میں بھی پھیل گئی، وہاں سے بھی کئی شہزادے اور نوجوان آئے، لیکن کوئی بھی درست جواب نہ دے سکا۔ 2 سال گزر گئے۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے، کیونکہ حقیقت وہی ہے جو بادشاہ نے بتائی ہے، لیکن شہزادی بادشاہ کی بات ماننے پر رضامند نہ ہوئی۔ بادشاہ شہزادی کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کے اندر ایک خفیہ جگہ تھی، وہاں ایک بڑا سا پنجرہ تھا جس میں ایک بدحال عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی سے کہا، تم اس عورت سے پوچھ لو، گل نے صنوبر کے ساتھ کیا اور صنوبر نے گل کے ساتھ کیا۔ یہ بات سن کر اس عورت نے جلدی سے سر اوپر کیا۔ شہزادی نے بچپن میں اس عورت کو دیکھا اور آج 15 سال بعد دوبارہ دیکھا تھا۔ بچپن میں ایک دن وہ بادشاہ کے کمرے میں آئی
और गलती से उससे खुफिया कमरे का दरवाज़ा खोल गया, जहां उसने एक निहायत खूबसूरत औरत को पिंजरे में कैद देखा। वो बेइख्तियार पिंजरे की तरफ बढ़ी थी। औरत ने भी जल्दी से पिंजरे से हाथ बाहर निकालकर उसे फराक से पकड़ लिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, गुले अनदाम, तुम मुझे जानती हो। बच्ची ने नफी में सर हिलाया। औरत रोने लगी। इतने बादशाह अंदर आ गया। उसने फौरन शहजादी को उस औरत से छड़ा और बाहर ले गया। उसके बाद कई बार शहजादी ने बादशाह के कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन कमरा बंद होता। शहजादी ने कई बार जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता न चल सका कि क्या मामला है। एक दिन बादशाह महल में मौजूद न था। शहजादी अपनी आया के साथ बातों में मसरूफ थी। आया से बातों बातों में शहजादी ने कहा, मासू, बाबा के कमरे में पिंजरे में बंद औरत कौन है? वो वहाँ क्यों बंद है? क्या वो मेरी माँ है? आया चुप हो गई, फिर इधर उधर देखकर बोली, शहजादी साहिबा, मैं पिंजरे में बंद औरत को नहीं जानती। तुम्हारी माँ का नाम गुल था। पता नहीं गुल ने सनोबर के साथ किया और सनोबर ने गुल के साथ किया और आप दोबारा फिर कभी मुझसे ऐसी बात ना पूछिएगा। अगर बादशाह सलामत को पता चला तो वो दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। शहजादी ने दोबारा कभी इस बारे में बात ना की, लेकिन मासू की ये बात गुल ने सनोबर के साथ किया और सनोबर ने गुल के साथ किया इसके दिमाग में बैठ गई। उसने सोच लिया कि वो इस बात का मतलब और राज जरूर जानेगी, और अब उसे मौका मिल गया था। शहजादी ने पिंजरे में बंद औरत को देखा। वो औरत मुसलसल उसे देखे जा रही थी। वो कुछ ना बोली। बादशाह ने कहा, ये औरत इसी काबिल है। मैंने इसके लिए कुछ ना किया, लेकिन ये बदजात औरत बेवफा निकली। इसकी यही सजा है कि ये जिल्लत की जिंदगी जिए। पहले मैं खाना खाता हूँ, जो बचता है वो मेरा कुत्ता खाना खाता है, और जो कुत्ता छोड़ता है वो खाना उसे देता हूँ। शहजादी अपने कमरे में आ गई। बादशाह जब बातों में मगन था, पिंजरे में बंद औरत ने इसके हाथ में कोई चीज थमाई थी, जिसे शहजादी ने मजबूती से पकड़कर मुट्ठी बंद कर ली थी। कमरे में आकर शहजादी ने दरवाजा बंद किया और मुट्ठी खोल कर देखी। वहां एक पर था, पर देखकर शहजादी को कुछ समझ न आया। फिर इसे औरत का आहिस्ता से कहा लफ्ज याद आया। शहजादी ने पर को खिड़की के पास ले जाकर दिया सिलाई जलाई और पर को आग लगा दी। आग लगते ही पर फौरन जल गया और अचानक हवा में एक बड़ा सा परिंदा उड़ता हुआ आया। शहजादी समझदार थी, इसने किताबों में ऐसे परिंदे का जिक्र पढ़ा था। परिंदा खिड़की के पास आकर रुक गया। शहजादी कुछ हिचकिचाई, फिर परिंदा पर बैठ गई। परिंदा शहजादी को लेकर उड़ने लगा। परिंदा आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुका था। बादलों के दरमियान से गुजरता हुआ परिंदा एक अजीबो-गरीब सल्तनत में दाखिल हुआ। शहजादी ने ऐसी रियासत पहले ना कभी देखी थी और ना इसके बारे में सुना था। परिंदा शहजादी को लेकर एक गार के पास रुक गया। शहजादी नीचे उतरी और इस अजीबो-गरीब गार को देखने लगी। जब उसने गार के अंदर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, तो उसे ऐसे लगा जैसे कोई चीज उसे अंदर खींच रही हो। वो गार के अंदर चलती चली गई। गार में एक बूढ़ा हकीम बैठा था। शहजादी को देखकर कहने लगा, आप बेटी। शहजादी ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा हकीम हंसने लगा, फिर कहने लगा, मैं कब से गुल इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम आ गई। खैर, शहजादी ने हैरान होकर पूछा, आप गुल को कैसे जानते हैं? बूढ़ा हकीम बोला, मैं उसका बदकिस्मत बाप हूँ, जो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कर सका। मैं काफी सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ। फिर शहजादी की तरफ देखकर कहने लगा, वो खुद क्यों नहीं आई? तुम्हें क्यों भेजा है? क्या वो अभी तक मुझसे नाराज है? शहजादी को बूढ़े हकीम की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। शहजादी ने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है?
आप कौन हैं और गुल महल में कैसे पहुंची? बूढ़ा हकीम बोला, ये बहुत लंबी कहानी है। हमारे शहंशाह बीमार हो गए। मैंने उनके इलाज में कोई कसर न छोड़ी। मैं और गुल बहुत परेशान थे, क्योंकि शहंशाह की वजह से हमारी रियासतों में आराम था। अगर उनको कुछ हो जाता तो सारा निज़ाम दिरहम बरहम हो जाता। एक दिन एक इंसानी दुनिया से शहजादा आया। उसने कहा वो शहंशाह का इलाज कर सकता है, लेकिन इसके बदले में मुझे अपनी बेटी की शादी उसके साथ करनी होगी। शहजादे की ये बात मेरे लिए हरगिज़ काबिल कबूल ना थी। शहजादे ने कहा, वो यहाँ इतनी मुसीबतें और मुश्किलें गुल के लिए झील कर आया है, और ये कि शहंशाह का इलाज सिर्फ उसी के पास है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान इतनी दूर कैसे आ गया है और मेरी बेटी को कैसे जानता है। मैंने कहा, ऐ नौजवान, तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो? नौजवान बोला, एक दिन मैं शिकार पर गया। रास्ते में एक तूफान आ गया। सारे सिपाही और गुलाम बिखर गए। मैं भी तूफान में भटक गया। भूख प्यास से बुरा हाल था। मुझे लगा मेरी मौत का वक्त आ गया है। फिर मुझे एक कुआं नजर आया। मैं जल्दी से कुएं के पास पहुंचा। कुएं में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं। मैं नीचे उतरा। वहां पानी और खाने की चीजें पड़ी थीं। मैंने पानी पिया और गहरी नींद सो गया। जब उठा तो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। मैं कुएं का जायजा लेने लगा। एक दीवार पर नक्शो निगार बने नजर आए। मैंने पास जाकर देखा तो वो एक खूबसूरत हसीन लड़की की तस्वीर थी। इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की मैंने आज तक ना देखी थी। मैं तस्वीर देखते ही इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मैं अपने मुल्क वापस आया और बड़े बड़े नजूमियों को बुलाया। इन्होंने मुझे हिसाब लगाकर बताया कि ये लड़की हमारी दुनिया की नहीं, बल्कि परसतान की बासी है और तबीब की बेटी है। मैं हर सूरत इस दोशीज़ा को हासिल करना चाहता था। नजूमियों ने बताया, वहाँ का शहंशाह अफरासियाब बीमार है, जिसका इलाज हमारी दुनिया में मौजूद जुड़ी बूटियों से मुमकिन है। अगर आप तबीब की मदद करें तो हो सकता है वो अपनी बेटी की शादी आपसे कर दें। मैं मुसीबतें झेलते दुश्वार गुजार रास्तों से होता अब यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे पास आपके शहंशाह की बीमारी का इलाज भी है, लेकिन इसके बदले आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। तबीब सोच में पड़ गया। वो शहंशाह के लिए अपनी जान भी दे सकता था, लेकिन ये एक मुश्किल काम था। आखिर काफी सोच विचार के बाद तबीब ने शहजादे से वादा कर लिया। तबीब ने शहंशाह को शहजादे की लाई हुई जुड़ी बोटियां पानी में घोल कर पिला दें। शहंशाह की तबीयत दिन बदन बेहतर होती गई। आखिर 7 दिनों में शहंशाह बिल्कुल ठीक हो गया। शहजादे ने तबीब को इसका वादा याद दिलाया। तबीब ने अपनी बेटी को बुलाया और सारा मामला इसके सामने रखा। गुल अनदाम ये सुनकर परेशान हो गई। कहने लगी, आपने पहले मुझसे क्यों ना पूछा कि या मालूम शहजादा किसी और शर्त पर मान जाता, लेकिन आपने जल्दबाजी में गलत फैसला कर लिया। आप जानते हैं ऐसा मुमकिन नहीं। मैं एक जिनजादी हूँ और मैं किसी इंसान से शादी हरगिज नहीं कर सकती। आप जानते हैं मैं और हरकल एक दूसरे को पसंद करते हैं। तबीब शहंशाह की बीमारी की परेशानी में ये बात भूल गया था कि गुल अनदाम और हरकल एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। तबीब शहजादे के पास गया और माजरत करते हुए कहने लगा, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकता। इसके बदले मैं हीरे जवाहरात जितना तुम चाहो तुम्हें देने को तैयार हूँ। शहजादा अब इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। इसने तबीब से कहा, अगर आप अपने वादे से मुकर रहे हैं तो मैं शहंशाह अफरासियाब के पास जाता हूँ, वही फैसला करेंगे। परसतान में वादा खिलाफी को नहायत संगीन जुर्म समझा जाता था। वादा खिलाफी करने वाले की ताकतें छीनकर उसे जलीलू रसू करके काले जंगल में फेंक दिया जाता था, जहां उसे असदे खा जाते या वो खुद भूख प्यास से मर जाता। गुल अपने बाप को परेशान नहीं देख सकती थी।
कहने लगी, बाबा, आप जानते हैं, इंसान जालिम और खुद गर्ज होते हैं। मैं आपको मुसीबत में नहीं देख सकती। आप चूंकि वादा कर चुके हैं, आप अपना वादा पूरा करें। तबीब का दिल दुख से भर गया। उसे लगता उसने शहंशाह की जिंदगी के बदले अपनी बेटी को जीते जी मार दिया है। तबीब ने दुखी दिल से अपनी बेटी से तमाम जादुई ताकतें ले लें और उसकी शादी शहजादे से करवा कर रुखसत कर दिया। जाते वक्त तबीब ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें एक राज बताता हूँ, शायद तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाएं। मापारा ने तबीब से पूछा, हरकल का क्या बना? क्या वो गुल के पीछे गया था? तबीब ने कहा, नहीं, मैंने अपने इल्म से मालूम किया तो पता चला हरकल जब मुआम पर गया तो रास्ते में एक पुराने कुएं में ठहरा। शायद वो उसका ठिकाना था। उसने वहां गुल की तस्वीर बनाई, जिसे देखकर शहजादा यहाँ तक आ गया। उसकी इस गलती की वजह से मेरी बेटी का ये अंजाम हुआ। यहाँ आकर वो मजीद हंगामा करता, मैंने उसे उस कुएं में हमेशा के लिए कैद कर दिया। वो अब भी वही है। तबीब ने मापारा से पूछा, मेरी बेटी कैसी है? लगता है वो मुझसे अब तक नाराज है, इसलिए खुद मिलने नहीं आई। तुम्हें भेजा है। मापारा ने पूछा, आप अपनी बेटी के बारे में क्या जानते हैं? कभी आप उसे मिलने गए? तबीब बोला, नहीं, अलबत्ता कुछ माह बाद मैंने अपने एक गुलाम को भेजा था। गुल ने उसे सख्ती से दोबारा आने से मना कर दिया और कहा, वो यहाँ खुश है। वो अब अपने माजी को भूल कर आइंदा जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहती है, इसलिए उससे मिलने कोई ना आए। जब उसका दिल चाहेगा वो खुद आएगी। मैं इतने सालों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, अब भी वो खुद मिलने नहीं आई। अपनी बेटी को भेजा है। मापारा बोली, आप कैसे जानते हैं मैं गुल की बेटी हूँ? तबीब हंसने लगा, फिर बोला, तुम हूबहू अपनी माँ जैसी हो, और मेरे गुलाम ने भी मुझे आकर बताया था कि गुल उम्मीद से है और बहुत खुश है। मापारा दुखी दिल से बोली, फिर ऐसा क्या हुआ जो बाबा ने माँ को उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया? ये बात सुनकर तबीब हैरान हो गया। ये बात उसके लिए नई थी। वो कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? मापारा दिख भरे लहजे में बोली, मेरी पैदाइश भी कैद खाने में हुई। मैं सबसे पूछती रही, मेरी माँ कहाँ है, लेकिन किसी ने मुझे इसका जवाब नहीं दिया। अब मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढने निकली तो इल्म हुआ, मेरी माँ 20 साल से एक पिंजरे में बंद है, जहाँ वो जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है। आज जब मैं उनके पास गई तो इन्होंने मुझे राजदारी से एक पर दिया, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। ये सुनकर तबीब तैश में आ गया। वो फौरन अपने गुलाम और शहजादी को लेकर महल की तरफ रवाना हो गया। उधर बादशाह को जब खबर मिली कि शहजादी महल में नहीं, वो परेशान हो गया। किसी ने शहजादी को महल से बाहर जाते नहीं देखा था। दूसरा दिन था। बादशाह ने सिपाहियों के दस्ते भेजे थे जो नाकाम लौट आए थे। बादशाह और दरबार में तमाम वुज़रा और दरबारी परेशान बैठे थे। जब अचानक वहां तबीब शहजादी के साथ वहां आ पहुंचा। तबीब ने आते ही जोर से बादशाह को ललकारा। बादशाह तबीब और शहजादी को एक साथ देखकर हैरान था। वो समझ गया शहजादी कहाँ गई थी, लेकिन कैसे गई ये समझ नहीं आ रहा था। बादशाह फौरन शहजादी की तरफ लपका और बोला, तुम इस तबीब तक कैसे पहुंची? शहजादी के कुछ कहने से पहले तबीब बोल उठा, कहने लगा, मेरी बेटी कहाँ है, जिसे तुम बड़े पहाड़ सर करके बड़ी मुश्किलें झील कर लेने आए थे? कहाँ है मेरी गुल? दरबार में मौजूद हर शख्स खामोश और हैरानू परेशान खड़ा था। बादशाह गुस्से से बोला, वो इस काबिल नहीं कि मैं उसका नाम भी लूं। मैंने उसके लिए किया कुछ ना किया, लेकिन वो बेवफा निकली। वो वही है जहां उसे होना चाहिए। तबीब दहाड़ते हुए कहने लगा, मेरी बेटी को बुलाओ, मैं उसे लेने आया हूँ। और दूसरी बात,
मेरी बेटी बेवफा नहीं, उसने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की। बादशाह बोला, मैंने उसे खुद रात को छत पर किसी के साथ देखा था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वो एक परिंदा पर बैठकर जा चुका था। मुझे यकीन है वो हरकल ही होगा, वो और गुल एक दूसरे से मिलते होंगे। तबीब कहने लगा, अफसोस, तुमने मोहब्बत की लेकिन एतबार नहीं किया। गुल ठीक कहती थी, इंसान जालिम और खुद गर्ज है, और तुम वैसे ही हो। एक जिनजादी की शादी किसी इंसान से तभी मुमकिन थी जब उसकी ताकतें और जादू वापस ले लिया जाए। अगर ना भी लिया जाए तो किसी इंसान से शादी के बाद उसका जादू और ताकतें खत्म हो जाती हैं। और ये बात तुम भी जानते थे, फिर तुम ये सब कैसे कह सकते हो? बादशाह कहने लगा, गुल का जादू खत्म हुआ था, हरकल का नहीं, वो तो आ सकता था। तबीब बोला, वो यहाँ तो क्या, कहीं भी नहीं जा सकता था। उसकी मुआम से वापसी पर जब वो अपने ठिकाने उस पुराने कुएं पर गया, मैंने उसे वही बंद कर दिया था, और ये सब शहंशाह अफरासियाब के मशवरे पर हुआ था। उसे उस पुराने कुएं से शहंशाह अफरासियाब के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। वो अब भी वही कैद है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से एक इंसान हमारी दुनिया तक आ गया। दूसरी वजह ये थी कि वो गुल को यहाँ ना पाकर हंगामा करता और एक नई जंग का आगाज हो जाता। तुमने यकीनन सरमई और नीले रंग का परिंदा देखा होगा, जो अभी भी तुम्हारे महल के बाहर मौजूद है। वो मेरा पालतू है। गुल और तुम्हारी शादी के तकरीबन 6 माह और 10 दिन हुए होंगे जब मैंने अपने एक गुलाम को गुल का हाल अहवाल पूछने भेजा था। बादशाह ये सुनकर पछताने लगा, कहने लगा, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे गुल ने बताने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागा। उसने खुफिया कमरे का दरवाज़ा खोला और पिंजरे की तरफ आया, लेकिन पिंजरा खाली था। ये उसके लिए नाकाबिल यकीन था। वो कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर दरबार में आया। गुल दरबार में मौजूद थी। उसकी जादुई ताकतें वापस आ गई थीं। वो अब आज़ाद थी। तबीब अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुआ। तबीब बादशाह से मुखातिब होते हुए बोला, मैंने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त एक राज बताया था कि अगर वो जालिम और बेरहम होगी तो वो दिन बदन बदसूरत होती जाएगी, और अगर किसी ने इस पर जुल्म किया और नारवा सलूक रवा रखा तो एक दिन ये अपनी खोई हुई जादुई ताकत हासिल कर लेगी और वापस अपनी दुनिया में आ जाएगी। गुल कहने लगी, बाबा, मैं बहुत पहले अपनी जादुई ताकत हासिल कर चुकी थी। मैं बहुत पहले कैद से निकल सकती थी, लेकिन इस तरह हकीकत सामने न आती और मैं अपनी बेटी की नज़रों में भी गिर जाती। आज मेरी बेटी सच सबके सामने ले आई। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है, जिसने मुझे नाकर्दा गुनाह की सज़ा से निजात दिलाई। बादशाह पशीमान गुल के पास आया और माफ़ी मांगने लगा। गुल ने बादशाह मुसव्विर को मुआफ़ कर दिया और तबीब के साथ जाने लगी। शहजादी माहपारा ने गुल को रुक जाने को कहा। गुल ने कहा, मेरा और तुम्हारे बाबा का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। मैं अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन तुमसे मिलने आती रहूँगी। तुम्हारा भी जब दिल चाहे मुझसे मिलने आ सकती हो। दोनों माँ बेटी गले मिलें। फिर माहपारा ने खुशी खुशी इन्हें रुखसत किया। बादशाह मुसव्विर सर झुकाए कुर्सी पर बैठा रहा। अब उसकी बाकी जिंदगी पछताओं में गुजरनी थी।